پھر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ نیم تاریک تھا۔ وہ جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھی، اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ دائیں طرف دیوار کے ساتھ ایک پڑی ہوئی کرسی پر ایک انسانی ڈھانچہ بندھا ہوا پڑا تھا۔ دریافت پلٹ کر دروازے کی طرف دوڑی۔ دروازے میں وہ کسی سے ٹکرا کر گر پڑی۔ اس کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے سامنے دیو قامت خاموش کھڑا تھا۔ اندھیرے میں بھی اس کی سرخ آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ دریافت انتہائی دہشت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے اپنے سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کتے کے بھونکنے کی آواز اس مرتبہ بہت قریب سے سنائی دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کسی آدمی کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ غالباً بہت دور تھا اور وہ کتے کا نام لے کر پکار رہا تھا۔ تم اس طرف نکل جاؤ۔ زرمک نے رک کر ایک طرف اشارہ کیا۔ یہاں سے تقریباً نصف میل دور ایک ندی ہے۔ تم پلیا کی دوسری طرف میرا انتظار کرنا، میں انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دریافت کا چہرہ دھما ہو گیا تھا۔ وہ بزدل نہیں تھی، لیکن پے در پہ پیش آنے والے پر اسرار واقعات اور عجیب و غریب حالات نے اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بٹھا دیا۔ اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ زرمک کون ہے اور اسے حویلی سے نکال کر کہاں لے جا رہا ہے۔ وہ حویلی سے نہیں نکلنا چاہتی تھی، خصوصاً اس رات جاگیردار نمران سے ملاقات کے بعد تو اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں حویلی سے نہیں جائے گی۔ اسے نہ صرف اپنی کتاب کے لیے دستاویزات کی ضرورت تھی، بلکہ وہ نمران کے خلاف جاگیر کے منیجر رکھیل شاہ کی سازش اور حویلی کے سربستہ راز بھی معلوم کرنا چاہتی تھی۔ سب سے بڑا راز تو یہ تھا کہ اس کے باپ کے پرانے کاغذات سے برآمد ہونے والی تصویروں اور خود اس کے باپ کا اس حویلی سے کیا تعلق تھا، اور وہ بہت کچھ معلوم کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے ہر حالت میں حویلی میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن زرمک ہمدرد بن کر اسے حویلی سے نکال لایا، کیونکہ زرمک کے کہنے کے مطابق اسے حویلی میں خطرہ تھا۔ جاؤ، دیر مت کرو۔ زرمک نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر آہستہ سے اسے آگے دھکیل دیا۔ زرمک کے ہاتھ کے لمس سے دریافت کے جسم ایک بار پھر سنسنی کی لہریں سی پھیل گئیں۔ وہ چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر مڑ کر تیزی سے ایک طرف دوڑنے لگی۔ اسے کتے کے بھونکنے کی آواز قریب آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زرمک چند لمحے وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر وہ بھی ایک طرف دوڑنے لگا۔ وہ جان بوجھ کر اس طرف دوڑ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آواز پیدا ہو۔ تقریباً 200 گز کا فاصلہ طے کر کے وہ رک گیا۔ اس جگہ جھاڑیاں بہت چھوٹی تھیں۔ وہ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ دفتن وہ چونک گیا۔ جھاڑیوں میں کسی جانور کے دوڑنے کی آواز سنائی دی تھی، اور پھر وہ آواز رک گئی۔ زرمک درخت کی آڑ سے نکل آیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں پر بہت خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس سے تقریباً 10 گز کے فاصلے پر وہ کتا کھڑا تھا، بالکل دبلا پتلا مگر قامت میں کسی قدر لمبا، اور اس کی رنگت بھوری تھی اور کہیں کہیں سفید بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ شکاری کتا تھا۔ کتے کے حلق سے خوفناک گراہٹیں نکلیں اور اس کے اگلے پیر کسی قدر آگے کو نکلے ہوئے تھے۔ وہ اپنے شکار پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا اور وہ اپنے پنجوں کو آہستہ آہستہ حرکت دے رہا تھا، غالباً حملے کے لیے پوزیشن درست کر رہا تھا۔ زرمک کے ہونٹوں کی مسکراہٹ بتدریج کرختگی میں بدلتی چلی گئی، اور پھر اس کے چہرے پر اس درندے سے زیادہ کرختگی آ گئی جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زرمک کے دائیں ہاتھ میں چاقو تھا۔ اس نے چاقو پھینک دیا اور دونوں ہاتھ آگے نکال لیے۔ انہیں دیکھ کر کہا جا سکتا تھا کہ وہ دونوں درندے ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کو تیار تھے۔ کتے نے گراتے ہوئے اچانک ہی اپنی جگہ سے چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگانے سے پہلے وہ اس طرح جھکا تھا کہ پیٹ زمین سے جا لگا، اور پھر وہ کسی طاقتور سپرنگ کی طرح اچھلا تھا۔ زرمک بھی تیار کھڑا تھا۔ کتے کو چھلانگ لگاتے دیکھ کر وہ کسی قدر نیچے جھک گیا اور اس کے ہاتھ بدستور سامنے کو نکلے ہوئے تھے۔ کتا ہوا میں اڑتا ہوا جیسے ہی اس کے اوپر پہنچا، زرمک نے بڑی پھرتی سے ایک طرف جھکتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے گلے پر ڈال دیے۔ شکاری کتا مینجیک سے نکلے ہوئے وزنی گولے کی طرح پوری قوت سے اس پر آیا تھا اور اس کے بورڈ سے زرمک لڑکھڑا کر پشت کے بل گرا۔ کتا بھی درخت سے جا ٹکرایا۔
जरमक ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए कलाबाजी खाई और इस तरह कुत्ते का गला दबोच लिया कि उसके पंजे उसे कोई नुकसान न पहुंचा सकें। शिकारी कुत्ता बुरी तरह मचल रहा था। जरमक ने पूरी कुव्वत से उसका गला दबोच रखा था। उसके चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी थी। उसकी गिरफ्त सख्त से सख्त तर होती गई। कुत्ता अपने जिस्म को बुरी तरह पटक रहा था, लेकिन उसकी मज़ाहमत बतदरीज कमज़ोर पड़ती चली गई और बिल आकर वो बेहिस्सो हरकत हो गया। मगर जरमक ने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी। उसने 2-3 जोरदार झटके दिए। कड़क की हल्की सी आवाज़ उभरी। कुत्ते की गर्दन की हड्डी टूट गई थी। जरमक ने एक और 2 झटके दिए और कुत्ते को छोड़कर अलग हो गया। उड़ते हुए उसके कदम लड़खड़ाए, लेकिन फौरन ही संभल गया और दरख्त के तने से टेक लगाकर खड़ा हो गया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसका जिस्म पसीने में तर हो गया था। उस खौनख्वार दरिंदे से मुकाबला करने का फैसला करके उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। कुत्ते का एक पंजा या दांत भी उसके जिस्म पर कहीं लग जाता तो खुद उसका बचना भी मुश्किल हो जाता। अपनी हालत पर काबू पाने के बाद उसने चाकू उठाया। कुछ देर तक इधर उधर देखा और किसी किस्म की आवाज़ सुनने की कोशिश करता रहा। फिर तेजी से उसकी उस तरफ चलने लगा जिस तरफ ज़रियाब गई थी। ज़रियाब तकरीबन दौड़ती हुई जा रही थी और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और लिबास झाड़ियों में उलझ रहा था। एक मर्तबा वो लड़खड़ाई और तवाज़ुन अपना बरकरार न रख सकी और झाड़ियों में गिर गई। उठने की कोशिश में उसकी बाहों पर कुछ खराशियाँ आ गईं। दाएं कंधे के करीब से कमीज़ कांटों में उलझ गई थी और उसने पहले ही अपने हाथ से कमीज़ छुड़ाने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सकी तो उसे एक ज़ोरदार झटका दिया। कमीज़ फट गई, लेकिन कांटों से निजात मिल गई थी। उसका कंधा बरहना हो गया था। फिजा का मलजगापन अब सफेदे में बदल रहा था। ज़रियाब को इसका तजर्बा याद था जब वो कमाल के साथ स्टेशन से हवेली की तरफ आ रही थी। अगरचे इस वक्त दिन तलू हो रहा था, लेकिन उस पर खौफ तारी था। जंगली दरिंदों का खौफ और गोपांग का खौफ जो उसकी तलाश में कुत्तों को लेकर उसी जंगल में घूम रहा था। बहुत देर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। अलबत्ता कभी कभी गोपांग की आवाज़ सुनाई दे जाती, जो गालिबन अपने कुत्ते को आवाज़ें दे रहा था। ज़रियाब दौड़ते दौड़ते बुरी तरह थक गई। उसका सांस फूल गया था और टांगें कांपने लगी। उसने इधर उधर देखा और एक दरख्त से टेक लगाकर खड़ी हो गई। जंगल बहुत गुंजान था। दरख्तों के ऊपर की शाखें अगरचे हवा से झूम रही थी, लेकिन नीचे हवा बहुत कम थी, जिससे घुटन का सा एहसास हो रहा था। दफतन दाएं तरफ झाड़ियों में तेज सरसराहट की आवाज़ सुनकर वह चौंक गई और झाड़ियों की तरफ देखने लगी। झाड़ियों में सरसराहट की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई जानवर घात लगाए दबे कदमों आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो। ज़रियाब के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो वहशतज़दा नज़रों से झाड़ियों की तरफ देखने लगी। दफतन एक जगह झाड़ियाँ तेजी से हिली और एक जानवर लपकता हुआ नजर आया। ज़रियाब के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो सफ़ेद रंग का एक खरगोश था जो झाड़ियों से निकलकर उसके सामने भागता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। उसके पीछे एक लूमड़ी भी झाड़ियों से निकलकर भागी। ज़रियाब का दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था और उसने हाथ सीने पर रखा हुआ था। उसके दिल की धड़कन अभी पूरी तरह काबू में नहीं आई थी कि गोपांग की आवाज़ सुनकर वो एक बार फिर उछल पड़ी। वो अब भी अपने कुत्ते का नाम लेकर पुकार रहा था। आवाज़ ज़्यादा दूर की भी नहीं थी। लगता था कि जैसे वो 100-150 गज के फासले पर हो। ज़रियाब एक बार फिर भाग खड़ी हुई। ज़रमक ने कहा था कि वह नदी की पुलिया के दूसरी तरफ उसका इंतज़ार करे, लेकिन वो अभी तक नदी पर भी नहीं पहुंची थी। वो खौफज़दा हरनी की तरह दौड़ती रही और बिल आकर नदी पर पहुंच गई। नदी तकरीबन 6 फुट चौड़ी थी और उसके दोनों किनारों पर सरकंडे से मिलती जुलती तवील कामत झाड़ियाँ थीं। ज़रियाब मुतहविश नज़रों से इधर उधर देख रही थी। पुलिया कहीं भी नज़र नहीं आई और नदी भी इतनी चौड़ी थी कि वह छलांग लगाकर पार नहीं कर सकती थी। अपने अकब में झाड़ियों में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ ज़्यादा दूर की नहीं थी और वो यकीनन गोपांग था जो अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया था। ज़रियाब का दिल खजान रसीदा पत्ते की तरह कांप रहा था। वो जानती थी कि अगर झाड़ियों में कहीं भी छुपी तो उसे तलाश कर लिया जाएगा और वो छुपने के लिए चारों तरफ देख रही थी। दफतन उसके ज़हन में एक और ख्याल उभरा। उसने एक सरकंडे नुमा पौधे की एक शाख तोड़ी
اور شاخ کی موٹائی ہاتھ کی انگلی کے برابر تھی۔ اس نے بڑی پھرتی سے ایک پوری پور الگ کر لی۔ تقریباً 2 بالشت لمبی یہ پور اندر سے کھوکھلی تھی۔ شاخ سوکھی ہوئی تھی اور اس کے توڑنے سے چٹک چٹک کی آوازیں ابھری تھیں۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور جھاڑیوں میں گھس کر ندی میں اتر گئی۔ وہ کنارے سے زیادہ آگے نہیں بڑھی تھی کہ جھاڑیاں پانی پر جھکی ہوئی تھی اور پانی اس کے سینے تک تھا، اور وہ پانی میں کھڑی جھاڑیوں سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کا خیال درست ہی نکلا۔ وہ گوپانگ ہی تھا جو اب دوڑتا ہوا سامنے آ گیا تھا، اور وہ ندی کے کنارے سے تقریباً 10 گز کے فاصلے پر رک گیا۔ بھاگ دوڑ سے اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو رہا تھا، قمیض پسینے میں تر تھی، چہرے اور گردن پر بھی پسینے کی دھاریں بہہ رہی تھی، اور وہ کچھ دیر تک وہاں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھنے لگا۔ دریاب نے کھوکھلی شاخ کا ایک سرا منہ میں ڈال لیا اور دوسرے ہاتھ سے ناک دبا لی، اور بڑی آہستگی سے پانی میں اس طرح بیٹھ گئی کہ کھوکھلی شاخ کا سرا پانی سے باہر تھا اور وہ اس نلکی کے ذریعے سانس لے رہی تھی۔ گوپانگ ندی کے کنارے پر جھاڑیوں کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں اوپر تھیں اور ندی کے پانی کی طرف دیکھنے کی اس نے ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ دریاب نے چٹکی سے اپنی ناک دبا رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ سے نلکی کو سنبھال رکھا تھا۔ اسے اگرچہ نلکی کے ذریعے سانس لینے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس طرح زیادہ دیر تک پانی میں نہیں رہ سکتی۔ 2 منٹ گزر گئے اور پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی مدھم سی آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرائیں۔ چند سیکنڈ بعد اس نے بڑی آہستگی سے سارے پانی سے باہر نکالا اور نلکی منہ سے نکال کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کنارے کی جھاڑیوں میں سے جھانک کر دیکھا۔ اسے گوپانگ نظر نہیں آیا، البتہ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی جو لمحہ بے لمحہ دور ہوتی گئی۔ دریاب چند منٹ اور پانی میں بیٹھی رہی اور پھر دفتن اسے دائیں ٹانگ پر سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی چیز اس کی ٹانگ سے لپٹ رہی ہو۔ سانپ، اور اس خیال کے آتے ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور وہ بڑی بدحواسی میں کنارے کی جھاڑیاں پکڑ کر ندی سے باہر آ گئی۔ ندی سے باہر نکلتے ہوئے اس کا پیر پھسلا اور وہ اوندے منہ کنارے پر گری۔ وہ چیز اب بھی اس کی ٹانگ سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے گردن گھما کر خوفزدہ نظروں سے ٹانگ کی طرف دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ بیل نما جھاڑی اس کی ٹانگ سے لپٹی ہوئی تھی۔ دریاب کو اپنے آپ پر بڑا غصہ آیا اور وہ اتنی بزدل کیسے ہو گئی کہ اس بات پر ڈرنے لگی تھی۔ اس نے بیل نما وہ جھاڑی ٹانگ سے ہٹا کر ایک طرف پھینک دی اور کچھ دیر تک کنارے کی گھاس پر لیٹی لمبے لمبے سانس لیتی رہی اور پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے کپڑے جسم سے چپکے ہوئے تھے اور پانی نچڑ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک وہاں کھڑی اس کی طرف دیکھتی رہی جس طرف گوپانگ گیا تھا۔ وہ دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ دریاب اب ندی کی کھاریوں کے ساتھ ساتھ بائیں طرف چلنے لگی۔ زرمک نے کسی پلیا کے بارے میں کہا تھا اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ پلیا کس طرف ہو سکتی ہے، اور وہ یوں ہی ایک طرف چل رہی تھی۔ تقریباً 50 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ وہ پلیا پر پہنچ گئی تھی، اور پلیا کیا تھی، 2 کٹے ہوئے درختوں کے تنے ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر ندی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس پلیا پر سے صرف پیدل ہی آمد و رفت ہو سکتی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہاں کسی سواری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس کے لیے باقاعدہ پلیا بنائی جاتی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ درختوں کی چوٹیوں پر دھوپ چمک رہی تھی۔ درخت اس کے اس قدر گنجان تھے کہ بہت کم دھوپ پتوں اور شاخوں سے چھن کر زمین تک پہنچ رہی تھی۔ پلیا پار کرنے کے بعد دریاب کچھ آگے جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ یہ ایسی جگہ تھی کہ وہ خود تو پلیا سے گزرنے والے کسی بھی شخص کو بآسانی دیکھ سکتی تھی، لیکن اسے آسانی سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ دریاب بری طرح تھک گئی۔ رات کے پچھلے پہر اسے سوتے میں اٹھایا گیا تھا اور اس وقت سے اب تک مسلسل بھاگ دوڑ ہو رہی تھی۔ ایک انجانے خوف نے اسے مسلسل گرفت میں لے رکھا تھا۔ حالات نے اچانک ہی حیرت انگیز پلٹا کھایا تھا۔ پہلے وہ حویلی کی قیدی میں تھی۔ جاگیردار نمران سے اس کی ملاقات ہو چکی تھی۔ اگرچہ کئی روز سے وہ دوبارہ زمین سامنے نہیں آیا تھا، لیکن دریاب کو یہ امید تو تھی کہ اس سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ بیمار ہو گیا ہو، یا اس کا یہ راز کھل گیا ہو کہ وہ کسی خفیہ راستے سے دریاب سے ملنے گیا تھا اور اسے حویلی کے کسی اور حصے میں منتقل کر دیا گیا ہو۔
लेकिन इस दौरान ये दोनों पुरअसरार आदमी बीच में टपक पड़े और उसे उठा कर ले आए। इसी कोशिश में दोनों में से एक कुत्तों का शिकार हो गया था और दूसरा आदमी जरमक उसे किसी खुफिया रास्ते से हवेली से निकाल लाया था। लेकिन जरमक कौन था और उसे इस तरह हवेली से क्यों निकाला गया था, और ये वो अब तक नहीं जान सकी थी। दरियाब के ज़हन में खामस का ख्याल उभर आया और वो तो पागल हो गया होगा। खामस ने उसकी तलाश में हवेली का कोना कोना छान मारा होगा और अब भी उसे हवेली में तलाश करता फिर रहा होगा। गोपांग बहुत जल्द हवेली से बाहर आ गया था। उसे यकीन हो गया होगा कि दरियाब हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करेगी और वो उसे जंगल में तलाश करता फिर रहा था और उसके बहुत करीब से गुजर गया था। जरमक उसे नदी की तरफ जाने का मशवरा देकर कहीं गायब हो गया था। दफतन जरमक के ज़हन में दरियाब के ज़हन में एक और ख्याल उभरा और उसके साथ ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर जरमक भी कुत्ते का शिकार हो गया या दरियाब उसके बताए हुए रास्ते की बजाय किसी और तरफ निकल आई तो वो पुलिया दूसरी तरफ भी हो सकती थी। बहरहाल सवाल ये था कि अगर जरमक उसे नहीं मिला तो क्या होगा। वो इस जंगल में कहाँ जाएगी, उसे तो वापसी का रास्ता भी मालूम नहीं। और अगर किसी तरह वो झाड़ियों में उसी खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल भी हो गई तो हवेली के नीचे सुरंगों का जाल बिछा हुआ था और वह सुरंगों की भूल बलियों में भटक रह जाएगी और एड़ियां रगड़ रगड़ कर खत्म हो जाएगी और किसी को उसका कुछ पता नहीं चलेगा। गोपांग और खामस भी चैन से बैठने वाले तो नहीं थे। दरियाब उनके खौफनाक राज से वाकिफ हो चुकी थी। उसे पता चल गया था कि उन लोगों ने जागीरदार निमरान को कैदी बना रखा था और दरियाब ये राज लेकर हवेली से निकल गई थी। वो मीलों दूर तक जंगल छान मारेंगे और उसे जिंदा बचकर नहीं जाने देंगे। उन्हें ये तो नहीं मालूम था कि दरियाब को हवेली से जबरदस्ती निकाला गया था। वो तो यही समझ रहे होंगे कि हवेली के बाहर दरियाब के हमायती मौजूद थे जिन्हें खुफिया रास्तों का भी इल्म था और दरियाब उनके साथ भाग निकली थी। सूरत हाल निहायत खौफनाक थी। उसे जल्द से जल्द यहाँ से ज़्यादा दूर निकल जाना चाहिए था, लेकिन कहाँ जाए। उसे जंगल में किसी रास्ते का इल्म नहीं था और वो जंगल में फटक कर दोबारा गोपांग या खामस के हाथ लग सकती थी। उसे वहां बैठे हुए 1 घंटा गुजर गया और उसके कपड़ों से अभी तक पानी नुचड़ रहा था। वो सोच रही थी कि अगर मजीद 5-10 मिनट तक जरमक नहीं आया तो वो उठकर चल देगी। और इस हवेली में आने के दूसरे ही दिन उसने छत पर से वो चट्टानें देखी थी जिनके बारे में गोपांग ने बताया था कि हवेली से दरवेशपुर तक सड़क बनाने के लिए इस चट्टान को तोड़ा जा रहा है। उन चट्टानों पर मजदूर काम करते थे और जाहिर है कि वहां मजदूरों की कोई छोटी सी बस्ती भी होगी। अगर वो उन चट्टानों तक पहुंच जाए तो उसे यकीनन मदद मिल सकती है, लेकिन वो तो ये भी नहीं जानती कि वो चट्टानें किस तरफ थीं। हो सकता है कि आवाज़ एक बार फिर सुनाई दे और इस मर्तबा आवाज़ बहुत करीब से सुनाई दी थी और उसके थोड़ी देर के बाद किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी और उसने गालबन कुत्ते का नाम लेकर कुछ कहा था। ये खामस है और दरियाब हकला कर रह गई। यहाँ रुक जाओ, जरमक ने कहा और बड़ी फिरती से जेब से चाकू निकाल लिया और वो बड़े फुर्तीले अंदाज में इधर उधर देख रहा था। दरियाब एक दरख्त के तने से टेक लगाकर अपने बेरबत तनफ़्फ़ुस पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। तकरीबन 5 मिनट गुजर गए और फिर वो सामने आ गए। खामस घोड़े पर सवार था और उसके साथ साथ कुत्ता दौड़ रहा था। ये उन्हीं खौनख्वार कुत्तों में से एक था जो दरियाब ने उस रोज हवेली में देखे थे। खामस ने भी जरमक को देख लिया था और उसने चीख कर कुत्ते से कुछ कहा था। कुत्ता कई फुट लंबी छलांगे लगाता हुआ जरमक की तरफ दौड़ने लगा। जरमक ने चाकू एक मखसूस अंदाज में पकड़ लिया था। उसकी नज़रें कुत्ते पर मरकूज थी और कुत्ता तकरीबन 10 गज दूर ही था कि जरमक का हाथ हरकत में आ गया। चाकू उसके हाथ से निकलकर बिजली के कूंदे की तरह कुत्ते की तरफ लपका और फिर दूसरी लम्हे कुत्ते के हलक से खौफनाक गुर्राहट निकली और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। चाकू दस्ते तक उसके हलक में प्यूसत था। खामस करीब पहुंच गया। उसने घोड़े पर से जरमक पर छलांग लगा दी। जरमक ने उसे दोनों हाथों पर रोका और सर से ऊपर उठाकर एक तरफ पटक दिया। दरियाब की आंखें हैरत से फैल गईं। जरमक ने किस कदर आसानी से खामस जैसे देव को उठाकर दूर फेंक दिया था और उसका घोड़ा भी हनहनाता हुआ कुछ दूर जाकर रुक गया था। खामस देव कामत होने के बावजूद हैरत अंगेज तौर पर फुर्तीला साबित हुआ और उसने उठने में 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाया।
वो संभलते ही जरमक पर झपटा और उसकी लात पर जरमक की पिसलियों पर लगी और वो लड़खड़ाकर कई कदम पीछे हट गया। खामस फिर उसकी तरफ लपका। ज़रियाब अच्छी तरह जानती थी कि अगर जरमक शिकस्त खा गया तो खुद उसका बचना भी मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा उसने भी खामस के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। वो मार्शल आर्ट की माहिर थी। मौजूदा सूरत हाल ने उसमें कुछ हिम्मत पैदा कर दी थी और वक़्त का तकादा भी यही था कि वो भी कुछ कर दिखाए। वो दरख्तों की आड़ से निकल आई। ए इधर, उसने खामस को मतवजा किया और उसके लहजे में लर्जिश थी और दिल की धड़कन भी तेज थी। खामस उसकी तरफ मुड़ा और उसने ज़रियाब को पहले नहीं देखा था और उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। ज़रियाब ने इस मौका से पूरा फ़ायदा उठाया और पूरी कुव्वत से उछलकर खामस को फ्लाइंग किक लगाई। उसका एक पैर खामस के सर पर और दूसरा गर्दन पर लगा था और वो बिलबिलाता हुआ नीचे गिरा। इस दौरान जरमक को भी संभलने का मौका मिल गया और फिर उन दोनों ने खामस को छाप लिया। खामस बड़ा सख्त जान साबित हुआ और उसे ढेर करने में 10 मिनट लग गए। मर गया? ज़रियाब ने हाँफते हुए सवालिया नजरों से जरमक की तरफ देखा। नहीं, इस किस्म के लोग आसानी से नहीं मरा करते, जरमक ने जवाब दिया और मुर्दा कुत्ते के गले में प्यूसत चाकू निकालकर खामस के कपड़ों से साफ करने लगा। खामस बेहोश था और कुत्ते की लाश के करीब ही पड़ा था। जरमक ने चाकू बंद करके जेब में रख लिया और कुछ दूर घाट चढ़ते हुए घोड़े को पकड़ लिया और वो दोनों घोड़े पर सवार हो गए। ज़रियाब पीछे बैठी थी और कदरे आगे झुकी हुई जरमक से लिपटी हुई थी। तकरीबन 2 घंटे के सफर के बाद वो जंगल से निकल आए। आगे बंजर जमीन थी और फिर खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। वो एक छोटी सी बस्ती से कतराते हुए निकल गए और मजीद 1 घंटे के सफर के बाद एक बहुत बड़े खंडर के करीब पहुंच गए। ये खंडर एक टेले पर था। किसी जमाने में यह कोई बहुत बड़ी शानदार इमारत रही होगी। जरमक ने तकरीबन 200 गज दूर ही टाहली के एक दरख्त के नीचे घोड़ा रोक लिया। दरख्त के साए में एक औरत बैठी हुई थी, सफेद लिबादे में लिपटी हुई। उस औरत का चेहरा सफेद चादर में छुपा हुआ था। ज़रियाब घोड़े से उतर आई। दरख्त के नीचे बैठी हुई औरत उठकर खड़ी हो गई और उसने चेहरे से चादर हटा दी। ज़रियाब उसका चेहरा देखकर उछल पड़ी। वो कुंदन थी जो मुस्कुराती हुई नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। तो तुम? और ज़रियाब हकला कर रह गई और उसकी नजरें कुंदन के चेहरे पर मरकूज थीं, जो बदस्तूर मुस्कुराती हुई नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। हाँ, मैं कुंदन हूँ, लेकिन तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? कुंदन ने कहा। ज़रियाब जवाब देने के बजाय कुंदन के चेहरे को घूरती रही और फिर उसने टेले पर खंडरों की तरफ देखा। उसकी नजरें रेंगती हुई जरमक के चेहरे तक गईं। ज़रियाब ने उससे सवाल किया कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आकाज़ादी के हुक्म पर जरमक ने कुंदन की तरफ इशारा किया। हवेली में तुम्हारी जिंदगी खतरे में थी। आकाज़ादी का हुक्म था कि तुम्हें हर कीमत पर हवेली से निकाल लिया जाए। आकाज़ादी? ज़रियाब उलझी हुई निगाहों से कुंदन की तरफ देखने लगी। तुम्हें शायद अब तक यकीन नहीं आया। कुंदन के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैं भी तुम्हारी और जरमक की तरह गोश्त पोश्त की इंसान हूँ और मुझे छू कर देखो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ज़रियाब की आंखों में उलझन तैर गई। उसने जरमक की तरफ देखा और फिर कुंदन के चेहरे पर नजरें जमा दी और उसके हाथ को छूने के बजाय एक सवाल कर डाला। 10 साल पहले क्या हुआ था? ओहो! कुंदन चौंक गई और उसका चेहरा धुआं हो गया। 10 साल पहले? वो खामोश होकर ज़रियाब की तरफ देखने लगी। तुम्हें क्या मालूम है? 10 साल पहले तुमने रखेल शाह से अपनी जान बचाने के लिए हवेली के फसील से छलांग लगा दी थी। तुम्हारी लाश शायद जंगली जानवर घसीट कर ले गए थे, जिसका कोई सुराग आज तक नहीं मिल सका। ओहो, तुम बहुत कुछ जान चुकी हो। कुंदन ने गहरा सांस लेते हुए कहा। ये बातें यहाँ खड़े होकर नहीं हो सकती। आओ इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे। वो जरमक की तरफ घूम गई। सिद्धू कहाँ है? वो हमसे बिछड़ गया आकाज़ादी, जरमक ने जवाब दिया। मेरी आंखों के सामने खामस के खौनख्वार कुत्तों ने उसे चीर फाड़ डाला और मैं उसकी कोई मदद ना कर सका। ओहो बेचारा! और कुंदन के मुंह से निकला। ठीक है, तुम जाओ और मैं भी ज़रियाब को लेकर जा रही हूँ। जरमक घोड़े पर बैठ गया और उसने ज़रियाब की तरफ देखा और घोड़े को हल्की सी एड़ लगा दी। घोड़े का रुख खंडरात वाले टेले की दाईं तरफ था। वो कुछ देर तक जरमक को देखती रही, फिर खंडरों की तरफ देखने लगी। वो किसी बहुत ही शानदार इमारत के खंडर थे। कुछ दीवारें और सतून अब भी अपनी जगह पर कायम थे। उन सतूनों को देखकर ये अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता था कि यहाँ जो भी इमारत थी उसका तर्ज तामीर यूनानी था।
चलो ज़रियाब। कुंदन की आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। ज़्यादा देर यहाँ खड़े रहना मुनासिब नहीं। ज़रियाब ने कुंदन की तरफ देखा। कुंदन मुस्कुराती हुई एक तरफ चलने लगी। ज़रियाब ने चंद लम्हे तवक्कुफ़ किया और फिर वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। वो दोनों आगे पीछे एक तंग सी पिगडंडी पर चल रही थी। ज़रियाब का ख्याल था कि कुंदन भी उस तरफ जाएगी जिस तरफ ज़रमा गया था, लेकिन उसका ख्याल गलत निकला। उसका रुख खंडर वाले टेले की तरफ था। ज़रियाब खामोशी से उसके पीछे चल रही थी। बिल आखिर वो खंडरों में पहुंच गई। ज़रियाब चारों तरफ देख रही थी। चमकती धूप में खंडर तप रहे थे। ये इमारत सुर्ख पत्थरों से तामीर की गई थी। चारों तरफ सुर्ख पत्थर बिखरे हुए थे। शिकस्ता दीवारें और बुलंदो बाला सतून चमकती हुई धूप में अजीब पुर इसरार सा तासुर दे रहे थे। कुंदन इन खंडरों में इस तरह चल रही थी जैसे इन खंडरों में ये तमाम रास्ते उसके देखे वाले हों। वो ज़रियाब से चंद कदम आगे थी। तेज हवा से उसका सफ़ेद लिबादा हवा में उड़ रहा था। उसने एक हाथ में चादर और दूसरे हाथ में लिबादा संभाल रखा था और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे इस बात का इत्मीनान कर लेना चाहती हो कि ज़रियाब उसके पीछे आ रही है या नहीं। ज़रियाब को यूं लग रहा था जैसे वो किसी कदीम शहर की तंग गलियों में घूम रही हो और एक जगह वो रुक गई। बिखरे हुए पत्थरों में एक जगह किसी जानवर का एक मुजस्मा भी पड़ा था। मुजस्मा टूटा हुआ था और उसका सर भी गायब था, लेकिन उस मुजस्मे की साखत से ये अंदाज़ा लगाना दुश्वार नहीं था कि वो शेर का मुजस्मा था। शेर, और इसे ताकत की अलामत समझा जाता है। ये इमारत भी शायद इस इलाके में ताकत की अलामत समझी जाती होगी, लेकिन वक़्त के बेरहम हाथों ने उसे मलिया मेट कर दिया था। आओ ज़रियाब, रुक क्यों गई? कुंदन की आवाज़ सुनकर ज़रियाब चौंक गई और रास्ते में बिखरे हुए पत्थरों से बचती हुई आगे बढ़ने लगी। उन खंडरों में कई चक्कर काटने के बाद कुंदन एक जगह रुक गई और उसके चंद गज के आगे एक मीनार सा नजर आ रहा था, तकरीबन 30 फुट बुलंद। इस मीनार की दीवारों पर बड़े खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे, लेकिन हवाद से ज़माना ने उन नक्शो निगार को बुरी तरह मुतासर किया था। लेकिन ज़रियाब को यह जानकर हैरत हुई कि इस मीनार में दाखिले का कोई रास्ता नहीं था। उसने मीनार के चारों तरफ घूमकर देख लिया और उसे कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई जिससे उस मीनार में दाखिल हुआ जा सके। ये गोल मीनार कहीं से टूटा हुआ भी नहीं था और उसकी दीवारें ऊपर तक सलामत थी। मीनार का ऊपर वाला हिस्सा इस तरह था जैसे कोई हेड ऊंधा रखा हो, और वह दोबारा कुंदन के करीब आ गई, जो उस जगह पर खड़ी उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी। तुम मुझे इन खंडरों में लेकर क्यों आई हो? ज़रियाब ने उलझी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। हवेली से तुम्हारे फरार के बाद गोपांग और खामस चैन से नहीं बैठेंगे। वो तुम्हारी तलाश में आसपास की बस्तियों को भी खंगाल कर रख देंगे और इस तरफ भी ज़रूर आएंगे, और ये खंडरात हमारे लिए महफूज तरीन पनाहगाह साबित होंगे जहाँ वो हमारा सुराग नहीं लगा सकेंगे। कुंदन ने जवाब दिया। महफूज पनाहगाह? ज़रियाब ने ताज्जुब का इजहार करते हुए चारों तरफ देखा। तुम समझती हो कि ये खंडरात हमें पनाह दे सकेंगे? हाँ, कुंदन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जिस तरह सदियों पहले ये इमारत अपने मकीनों के लिए महफूज तरीन पनाहगाह थी, उसी तरह आज ये खंडर भी हमें पनाह देंगे। ज़रियाब बेदस्तूर उलझी हुई नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। कुंदन ने एक बार फिर मुस्कुराती हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा और फिर एक शिकस्ता दीवार के करीब बैठ गई। दीवार में ज़मीन की सतह से तकरीबन 1 फुट ऊपर एक पत्थर निकला हुआ था, जिससे दीवार में एक खला सा बन गया था। कुंदन ने उस खला में हाथ डालकर कोई चीज़ निकाली जिसे ज़रियाब नहीं देख सकी थी। वो सीधी होकर दाएं तरफ मुड़ना ही चाहती थी कि बहुत दूर धूल के बादल उठते देखकर वो चौंक गई। शायद वो लोग तुम्हारी तलाश में उस तरफ आ रहे हैं, मेरे साथ आओ, जल्दी करो, कुंदन ने कहा और तेज कदम उठाती हुई एक तरफ चलने लगी। ज़रियाब भी तेज कदम उठाती हुई चल रही थी। पत्थरों से ठोकर खाकर वो कई मरतबा गिरते गिरते बची। कुंदन एक जगह रुक गई और वहाँ एक दीवार के नीचे खड्ड सा नजर आ रहा था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे किसी जानवर ने पंजों से ज़मीन खोदकर उस शिकस्ता दीवार के नीचे अपना ठिकाना बना रखा हो। वो खड्ड इतना कुशादा था कि एक आदमी सीने के बल रेंग कर आसानी में से उसमें दाखिल हो सकता था। कुंदन बड़ी फुर्ती से ज़मीन पर बैठ गई। उसने अपने पैर अंदर दाखिल किए और फिर पुश्त के बल रेंगती हुई उस खड्ड में दाखिल हो गई।
जल्दी करो दरियाब, अगर उन लोगों ने हमारी झलक भी देख ली तो पूरे खड्ड को खोद कर रख देंगे। खड्ड के अंदर से कुंदन की आवाज़ सुनाई दी। दरियाब ने गर्दन घुमाकर दाएं तरफ देखा। बहुत दूर गर्दो गुबार का बादल सा उठता हुआ नजर आ रहा था। वो यकीनन 1 या 2 घुड़सवार थे जो उसी तरफ आ रहे थे। फासला बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो उन घुड़सवारों को नहीं देख सकी, लेकिन उड़ती हुई धूल से ज़ाहिर हो रहा था कि उनका रुख उसी तरफ था। वो इस तरफ भी ज़रूर आएंगे। कुंदन ने उसे दोबारा अंदर आने के लिए कहा। दरियाब का दिल चाहा कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन अगर वो लोग इस तरफ आ रहे थे तो वो जल्द ही उसे पकड़ लेंगे और जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो हवेली से निकलना नहीं चाहती थी, मगर जरमक और उसके साथी उसे बेहोश करके उठा लाए थे। खामस उसके हाथों पिटा भी था और वो उसे हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब उसकी भलाई इसी में थी कि कुंदन के कहने पर अमल करे। क्या सोच रही हो दरियाब, जल्दी करो। कुंदन की आवाज़ फिर सुनाई दी। दरियाब जैसे होश में आ गई और कुंदन के मशवरे पर अमल करने में ही भलाई थी। इस वक्त इसके सिवा कोई चारा नहीं था और उसने एक बार फिर उड़ती हुई धूल की तरफ देखा और ज़मीन पर बैठ गई। फिर जिस तरह कुंदन खड्ड में दाखिल हुई थी उसी तरह दरियाब भी अंदर चली गई। ये एक तंग सी सुरंग थी जिसमें सिर्फ रेंग कर ही आगे बढ़ा जा सकता था। कुंदन ने टार्च रोशन कर ली। दरियाब को समझने में देर नहीं लगी कि कुंदन ने मीनार के करीब दीवार की खिला से जो चीज़ उठाई थी वो टार्च थी। 3-4 गज के बाद ये सुरंग दाएं तरफ मुड़ गई और फिर बाएं तरफ। वो दोनों आगे पीछे रेंगती हुई आगे बढ़ती रहीं। तकरीबन 15 गज का मजीद फासला तय करने के बाद दरियाब अचानक की कुशादा जगह पर निकल आई। उसने मुड़कर देखा। वो तंग सी सुरंग एक खिड़की की तरह लग रही थी और उसकी दाएं तरफ एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। कुंदन ने टार्च जमीन पर रख दी। इस पत्थर को धकेलने में मेरी मदद करो, वह दरियाब की तरफ देखते हुए बोली। दरियाब उसके करीब पहुंच गई और दोनों पत्थर को धकेलने लगी। पत्थर सिरकता हुआ सुरंग के खिड़की नुमा दहाने पर इस तरह फिट हो गया जैसे उसी जगह से निकाला गया हो। कुंदन ने टार्च उठा ली और वो दोनों कुशादा सुरंग में चलने लगी। बाल खाती हुई सुरंग एक जगह खत्म हो गई और उसके आगे एक बहुत बड़ा हाल था। पत्थर के बड़े बड़े सतूनों ने छत को सहारा दे रखा था। उस हाल की दूसरी तरफ एक कुशादा राहदारी में मशालें जल रही थी। हाल अगरचा पूरी तरह रोशन नहीं था, लेकिन तारीकी बहरहाल कम हो गई थी। दरियाब का दिल होले होले कांप रहा था। वो अजीब तागूती चक्कर में फंस कर रह गई थी। वो अपने ख़ानदान की उन तारीख पर रिसर्च करने निकली थी और पुरअसरार हालात का शिकार हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सूरत हाल से निजात कैसे हासिल करेगी। राहदारी के इख्तिताम पर एक और छोटा सा हाल था जिसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। उस हाल में भी कई मशालें रोशन थी और रोशनी बहरहाल इतनी मुनासिब थी कि चंद कदम दूर खड़े हुए शख्स का चेहरा बखूबी देखा जा सके। एक बात दरियाब ने खास तौर से नोट की थी कि उन सुरंगों या तहखाने में किसी किस्म की घुटन नहीं थी। लगता था कि जैसे ताज़ा हवा की आमदोरफ़त का कोई मौसर निज़ाम मौजूद हो। उस हाल के ऐन वसत में एक बहुत बड़े सतून ने छत को सहारा दे रखा था। हाल में मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे पत्थर भी पड़े थे जिन्हें सीटों के तौर पर तराशा गया था। दरियाब वहाँ खड़ी हैरत से इधर उधर देख रही थी और फिर दफतन दाएं तरफ एक कमरे का दरवाज़ा खुला और जरमक कमरे से निकलकर हाल में आ गया। जरमक को देखकर दरियाब उछल पड़ी। वो तो घोड़े पर सवार होकर टैले के दाएं तरफ चला गया था और वह उनसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गया, और फिर वो घोड़ा। दरियाब ये सब कुछ सोच ही रही थी कि कुंदन की आवाज़ सुनकर चौंक गई। तुम शायद ये सोच रही हो कि जरमक हमसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गया। खंडर के नीचे इस तहखाने में आने का एक और रास्ता भी है। ये तहखाना दरअसल जरमक ही की दरियाफत है। इस राह से सिर्फ हम चंद लोग वाकिफ़ हैं कि इन खंडरों के नीचे कोई तहखाना भी है। महकमा आसार कदीमा को शायद इन कदीम खंडरों से कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए इस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी गई। हो सकता है कि कभी इस तरफ तवज्जो दी जाए और तहकीकात के दौरान अगर कभी खुदाई की गई तो शायद इस तहखाने का राज खुल जाए। तो मुझे यहाँ क्यों लाई हो? दरियाब ने कुंदन के चेहरे पर नजरें जमा दी। ये सवाल कितनी मरतबा पूछोगी? कुंदन मुस्कुरा दी। वो मजीद कुछ कहना ही चाहती थी कि एक और कमरे का दरवाज़ा खुला
और एक लड़की निपे तुले कदम उठाती हुई उनकी तरफ आने लगी। ज़रियाब अजीब सी नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी और उसकी चाल से यूं लगता था जैसे कदम ज़मीन पर रखने की बजाय हवा में तैर रही हो। ज़रियाब के दिमाग में तेज सनसनाहट होने लगी। लड़की की उम्र 16-17 साल की लगभग ही और बेहद हसीन थी। ज़रियाब को दिल ही दिल में एतराफ़ करना पड़ा कि ऐसी हसीन लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी और उसके अहमरी होंठों पर मलकूती मुस्कुराहट थी। ये खुशनुमा है, कुंदन ने गोया उसका तारफ़ कराया। ज़रमक की छोटी बहन। ये दोनों बड़ा चाहते हैं कि एक दूसरे को, और यूं कह लो कि ये एक दूसरे के लिए जीते मरते हैं। और खुशनुमा वो लड़की की तरफ घूम गई। ये ज़रियाब है और उसका गायबाना तारफ़ मैं तुमसे पहले भी करा चुकी हूँ। खुशनुमा ने आगे बढ़कर ज़रियाब की तरफ हाथ बढ़ा दिया। ज़रियाब एक लम्हा को हचकचाई, फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। खुशनुमा का हाथ रुई के गाले की तरह नरम था। ज़रियाब से हाथ मिलाते हुए उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई और उसके साथ ही उसके दाएं रुखसार में एक छोटा सा गरा पड़ गया था। वो वाकई खुशनुमा थी। रुखसार पर गड़े ने उसके हुस्न में और अजाफा कर दिया था।